All right, good morning and I welcome you students. Very important topic. There will be definite questions on this. Last time student, you have seen that when electric current flows through a conductor or a resistor, what happens? Heating is also produced. Current is flowing and some amount of electrical energy is converted into heat energy. And we have shown last time, if I take pure resistivity, what happens? Then we are saying that the electrical energy is converted into heat energy. Is that right? Yes, sir. So heating effect of electric current has two sides of the coin. One is in normal cases, if too much heating will take place, what will happen? This is undesirable. This is not required. If I run a fan for very long period of time, if I run any motor for a very long period of time, any machine I run electrical energy for a long period of time, then heating is produced. Then what is that heating? I don't want heating in that case, but it is being produced. So that dissipates energy. And sometimes when overheating takes place, what is happening? The useful energy is getting converted into heat energy. And then the unavoidable heating can increase the temperature of the components. You have seen many times things become very hot when Yes, current sir. lasts for a longer period of time. So what will be the result of overheating? Overheating, and this can damage the components and the appliance. So we actually, as I said, the heating is undesirable in most of the electronic devices which we are using. But we have shown you the practical application of heating effect. Question is, what are the practical applications of heating effect? The heating effect of current is used in heating appliances. Which appliances we are using? Electric iron, room heaters and water heaters. So these are examples of the application. The question is, question number one, I am saying, what are the advantages? Okay, I put it this way. Or applications of heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Whatever I write, you note down everything, because these are the questions which have been asked in the previous papers. Based on that, we give you all the information. Applications, देखो, most important is that when you learn science, when you learn chemistry, when you learn physics, when you learn bio, the most important is application. What are the uses of these in our everyday life or in any case? And most of the questions will be based application based. Clear? So any law, what are the applications of that? What are the advantages? And you have seen what appliances you are using. Electric iron. What are the applications? All of us have electric iron at home. Yes or no? Tell me. Yes, sir. At times we do use that also. धोबी तो आ रहा है आपका, लेकिन उसके बाद ये भी अपने पास भी रखा हुआ है। और अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो फिर वहां तो कोई है नहीं, खुद ही करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन हमारे पास होता ही है। कहीं भी आप जाते हो तो कैरी करके ले जाते हो। किसी और कंट्री में जाओगे तो इलेक्ट्रिक आयरन आपको खुद रखना पड़ेगा। और फिर रूम हीटर है। अब सर्दियां हैं तो क्या कर रहे हो? आपने कहा जी मैंने तो रूम हीटर रखा हुआ है। जिस तरह का भी हीटर आपके पास है, आप वो हीटिंग कर रहे हैं, और आप वाटर को हीट करते ही हो। गीजर्स आपने रखे हुए हैं, सर्दियों में यूज कर रहे हो। तो ये एप्लीकेशन भी है, क्योंकि हीटिंग प्रोड्यूस हो गई है तो उस हीट एनर्जी को मैं यूज कर लेता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हिसाब से? डू यू हैव एनीथिंग? टेल मी। ये तो मैंने डिस्कस किया, और कुछ तुम्हारे पता लग रहा है कि क्या करता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग? आंसर मैंने दे रहा हूं एक ए पार्ट में। बी में कह रहा हूं कि समटाइम्स व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक Yes, sir. हीटिंग is used to produce light energy. Arab, can you tell me any example of this? So, like bulb, when heating, like the filament that is in the bulb called tungsten, it gets heated up and that it gives light then. Okay, you are saying electric bulb
अर्लियर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते थे, उसके बाद फिलामेंट ट्यूब्स आ गई और फ्लोरेसेंट और जो भी टू सेव द एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका सिंबल क्या दिखाया था हमने, ऐसे, ठीक है। Yes. तो ये एक कॉइल है, ये एक फिलामेंट है। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें जाएगी तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट गोज इन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये बल्ब का फिलामेंट है, किस चीज का बना है, टेल मी आरब। Sir, tungsten. टंगस्टन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। टंगस्टन एक मेटल है जिसका ये बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोज इनटू द फिलामेंट ऑफ द टंगस्टन बल्ब। तो होता क्या है कि अब ये हॉट हो जाएगा, दिस बिकम्स हॉट बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। ड्यू टू द हीट एनर्जी the tungsten will become hot and then what will happen, very hot हो जाएगा, फिर ये emit करेगा light, then it emits light। मतलब ये आपने देखा होगा, रेड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो देन इट विल emit लाइट। तो ये जो बल्ब है इसमें टंगस्टन क्यों यूज हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन, why tungsten used as, why tungsten is used, ठीक है, for making as a filament in bulb, what is your answer? Sir, as tungsten has a very high boiling point and it's become hot, then it emit light. Boiling नहीं, melting point होता है। Sir, yes, sorry, melting point. हाँ, मैंने एक चीज, to all my students, I request you never give answer in a hurry। देखिए मैं जल्दी में आंसर करूंगा ना तो देयर विल बी सम एरर, समझ में आ रहा? बेसिक Yes. माइंड जो हमारा होता है ना, उसे टाइम चाहिए होता है। I ask you a question now in the paper also, a lot of students are trying to give answer in a hurry and then there will be mistakes and errors, but my mind needs time to think। मैं कह रहा हूँ सोच लीजिए पहले, जल्दी क्या है, and then you answer the question। तो एक each and every word has a meaning। If I write the wrong word, zero answer। If I write the correct word, only one word or one line, full answer, full marks। ज्यादा नहीं लिखना, कहीं ज्यादा लिख रहे हैं हम, बताइए आजकल के पेपर्स में। No, sir. तो वन वर्ड ही सारा डिसाइड करेगा, वन लाइन विल डिसाइड योर आंसर, बस, नॉट मोर देन दैट। सो वी हैव टू राइट करेक्ट आंसर। तो व्हाई टंगस्टन यूज्ड फिलामेंट, यू आर सेइंग इट हैज अ very high melting point। So what is the result of that? Because as it will get hot, very hot, temperature will rise। If high temperature is there, if it melts, then what happens? You have seen electric bulb as a lifetime, some life is there, short life, after some time overheating takes place and you have seen the filament fuse हो गया, fuse हो जाता है ना बल्ब, तो वो ओवर हीटिंग से वो खत्म हो जाता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का जितना है, पता है कितना मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का? 3380 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन। तो टेम्परेचर राइजेस वेरी हाई इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पर जो बल्ब हमने दिखाया इसका टेम्परेचर बहुत राइज कर जाएगा, हीट अप हो जाएगा। एक और भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? आपने देखा कई बार इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन यू, ये जब टूटता है तो व्हाट, सम गैस इज कमिंग आउट ऑफ इट। Yes, sir. कौन सी गैस है? विच गैस इज फिल्ड इन द बल्ब्स? इज इट एयर? Sir, nitrogen. क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज फिल्ड, ठीक है, विच गैस इज यूजुअली फिल्ड, ठीक है, इन द बल्ब्स, ठीक है, कौन सी होती है गैस? Sir, I think nitrogen. क्या आंसर दिया आपने? कोई जिसे इनर्ट टाइप गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कौन सी होगी?
which do not react, So nitrogen. like nitrogen you are saying. नाइट्रोजन आपने कहा कि हम इसमें भर सकते हैं और होती है, और एक आर्गोन गैस होती है, ये नोबल गैसेस होती हैं, ये इनर्ट गैसेस है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, दे डू नॉट रिएक्ट, बिकॉज व्हाट कैन हैपन इफ द फिलामेंट इज हॉट, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्या होगा? Yes, sir. ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद दिस, हाई टेम्परेचर इज देयर, तो एयर में तो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद दिस एंड देन इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो बल्ब खराब हो जाएगा. तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव सम केमिकली इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन. और सर CO2 क्यों नहीं हो सकता इसके अंदर वैसे? CO2 CO2 नहीं, वो गैस इसलिए नहीं यूज होती, वो तुम देखेंगे हम एरिएटेड ड्रिंक्स में होती है, वो एसिडिक होती है, वो भी रिएक्ट कर जाएगी. नाइट्रोजन और आर्गोन कह रहा हूँ, नोबल, ये इनर्ट गैसेस हैं. जो भी गैस sir. रिएक्ट नहीं करती, that I can use. Anything which can react I cannot use. Okay? Yes, तो sir. वो इनर्ट गैस नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारे अपने लिए ही बहुत खराब है, तुम्हें पता है, हमारे बॉडी में चले जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो दिस इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. तो यहाँ पर जो लाइट सबसे पहले बल्ब्स बनाए थे वो इसी प्रिंसिपल पर थे कि हमने किसी चीज को हीट किया, टेम्परेचर राइज हो गया, और हॉट होने के बाद a part of the heat energy is dissipated in the form of light energy. Most of it is heat energy. तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, what are the applications and advantages of heating effect of the electric current. So application is very important. If heating is produced, we should be able to use it, and we are already using it in our everyday life. ठीक है? Yes, sir. और भी अभी एक यूज बताने जा रहा हूं, अभी आपके सामने आएगा. अब एक क्वेश्चन ये आया था पेपर में, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग. तो डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग? if in every conductor I pass the current and heating takes place, if in every electrical appliance too much heating will be produced, what will be the result of that? सर एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. हाँ, तो फिर इसके क्या होगा, डैमेज हो जाएगा. When electric current flows through a conductor, a part of it is converted into heat energy. Heat produced can damage the insulation and other electrical components or even cause fire. So जो overheating हो जाएगी, overheating, the result is temperature will increase, temperature will rise, and what will happen, jo every wire, you know, every conductor is insulated. Why it is insulated, you know, otherwise क्या होगा? Yes, sir. इलेक्ट्रिक सर ना इलेक्ट्रिसिटी वो पास करने देगा. हाँ, तो वो it will damage the insulation. और फिर क्या होगा कि अगर इंसुलेशन होगी तो फिर इसमें हमें करंट भी लगेगा, एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. तो इट विल डैमेज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. तो अप्लायंस तो खराब हो जाएगा हमारा, एंड इवन एक्सट्रीम केसेस में आपने देखा कई बार फायर हो जाती है. Yes. All this is a problem when we have the heating effect. चलो ये भी नोट कर लिया हमने. क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग. अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, देखो एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपने देखी होगी, कॉमन एप्लीकेशन क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन application, what is most important common application of Joule's heating effect? आपके घर में आप यूज कर रहे हो कहीं ऐसी चीज, कुछ आ रहा है आपके माइंड में? And your home you have an electric circuit? Yes, sir.
व्हाट डू यू यूज आउटसाइड होम, कभी बाहर जाते हो तो क्या लगा होता है, क्या होती है जहां बिफोर द करंट एंटर्स इनटू योर होम, व्हाट यू आर हैविंग, टेल मी। यू यूज फ्यूज, Yes, sir. fuse is used in electric circuits. Yes, sir. Why you use fuse in electric circuit? This is important question. Electric जो भी करंट सर्किट है, why you are using fuse? चलो एक important question बता दिया मैंने आपको। Sir, it protects the circuits. How it protects the circuit? You have seen fuse wire. If excessive current will flow, if excessive current flows into circuit, ठीक है, into the electrical appliances, what will happen? Flows into electrical appliances. You have seen different appliances will be run at different currents. Different appliances are drawing different amount of currents. If I pass Yes. excessive current in an appliance, what will happen? So the What will fuse happen? wire can melt. Yeah, damage हो जाएगा ना appliance. It is very clear. So Yes, sir. the appliances, if they get high electric current, what will happen? If excessive or high current flows into electrical appliance, the appliance will be damaged. तो आपका appliance खराब हो जाएगा. So how will we protect it? So fuse wires are used. Fuse wires are used. It protects circuits and appliances. Protects circuits and appliances. How it will protect? क्या होता है इसमें? What is the mechanism? What happens if excess current flows? So excess current will flow, the fuse wire will melt. Wire melts. ठीक है? Yes, If sir. excess current flows. If excess current flows, it will melt. Then what will happen? The circuit will be broken. Broken. Circuit will be broken. And current supply will be cut off. Current supply क्या होगी? Cut off हो जाएगी. So you go to your home and you check where the electricity is coming. You will find there are fuse wires which are already outside before the current enters into your home. And sometimes you have seen when some fluctuation in electricity takes place or high voltage is, high current is passed suddenly, what happens? वो fuse उड़ जाता है. कभी fuse उड़ा है आपके घर में? Yes, sir. So that is the wire you see which is protecting the appliances, because excessive current is not allowed to enter into your homes, because these appliances will be damaged. And this piece of wire जो होती है वो that can be a metal or an alloy. Fuse wire किस चीज की होती है? A metal or an alloy. Fuse wire. All these questions can be there. Metal or alloy, कौन सा यूज होता है? You have any idea? Can you name any metal or alloy which is used? एल्यूमिनियम का भी यूज होता है, कॉपर होता है, आयरन, लेड, ये सब मैंने सिंबल्स बताए हैं. एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और एलॉयज भी होते हैं. तो Yes, sir. दे कैन टेक ओनली स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करंट. उनकी रेटिंग होती है. क्या होती है? रेटिंग होती है हर चीज की. तो फ्यूज वायर्स की रेटिंग मिलेगी आपको मार्केट में भी. कितनी रेटिंग का आपको चाहिए? देखो कुछ 1 एम्पेयर के होते हैं, 2 एम्पेयर के होते हैं, 3 एम्पेयर लाइक दिस, और हायर के लिए 5 और 10 एम्पेयर. ठीक है? तो अगर ये फ्यूज वायर यहाँ तक इसके ऊपर करंट गया तो वो मेल्ट हो जाएगी. इफ दिस गोज अबव 5 एम्पेयर मेल्ट हो जाएगी. 10 एम्पेयर का फ्यूज लगा रखा है तो 10 एम्पेयर से ज्यादा करंट होगा तो मेल्ट हो जाएगी. समटाइम्स यू नीड मोर करंट्स इन सर्टेन appliances, you know about that. और कुछ appliances के ऑलरेडी ऑटोमेटिक ऐसे फ्यूज लगे होते हैं. हमें पता है कि एक्सेस करंट होता है तो वो अपने आप ही प्रोटेक्ट कर देते हैं. तो ये सारी सिचुएशंस हमारे पास हैं. तो जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो कंज्यूम करता है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर जब 220 वोल्ट पे आप ऑपरेट करते हैं, और उसमें करंट अराउंड 4.5 एम्पेयर्स होता है, और इसके लिए 5 एम्पेयर फ्यूज शुड बी यूज्ड. किसके लिए? इलेक्ट्रिक आयरन. तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है
आपने एक न्यूमेरिकल भी किया था लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक आयरन का, डिड वी डू लास्ट टाइम? कितना यस करंट सर। आया था उसमें? सर 5 एम्पेयर ही आया था। 5 से थोड़ा कम था ना, 4 पॉइंट समथिंग। यस तो सर। इसके लिए वो फ्यूज वायर यूज कर लेते हैं 5 एम्पियर, मतलब इससे ऊपर करंट जाएगा तो वो फिर ब्रेक हो जाएगा सर्किट। मेल्ट हो जाएगा। बेल्ट। और ये क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। क्वेश्चंस हमें व्हाट वी आर डूइंग, why you are participating in this, I am not doing anything, and you are trying to understand. As I say again and again, science is to be understood, physics is to be understood, chemistry is to be understood, bio is to be understood. It is to be learned, not to be mugged. Memory is required, but when I will do questions, repeat it, then in my mind there are cassettes, and they will store it, and in the exam I will be easily do it. If I do mugging, then I am always in doubt. I cannot answer the question correctly. So that practice should be given by all the students. We should learn the things. We should understand it. Everything is science. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, वो साइंस ही है। घर में भी जो कुछ हो रहा है वो साइंस ही है। मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये साइंस है। हाउ यू आर एबल टू लिसन टू मी, टेल मी। अब जूम चल रहा है, I pay monthly to Zoom so much money. So that means I'm using the technology, I'm using the science. You are able to see the board also I'm writing, and you are attending my lecture. How, I mean, it has so much advantage also. You can see how clearly we can explain everything. And then you will get video recorded. If you miss anything, again, you will see the video and you will stop it and see what question I have solved, anything. So you know that everything is science now. But if I say कि भाई पूरी किताब याद कर लो, अरे मैं भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, उसका क्या यूज है? स्टूडेंट्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना ठीक नहीं है। आई एम सेइंग बी कंफर्टेबल, टेक योर टाइम। बार बार कह रहा हूँ, टेक योर टाइम। I have doing lot of research on science of life, hundreds of books I have read on that, and I know कि जो माइंड है उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, न्यूरो साइंस को, कि हमें रिलैक्स्ड रहना। If I am under tension and stress, I will not learn. Lot of students have got high level of stress, and I do lot of exercises with them before I take my class. पिछले मेरे लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। क्यों? I don't want to destroy the students. ऑलरेडी 3 क्लासेस अटेंड करके इतना प्रेशर है, और प्रेशर डाल दूंगा, इट विल बी वेस्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिलैक्स कर जाओ और धीरे धीरे लर्न करो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं। मेरे पास बहुत टाइम है। तुम वंस आई कम बैक, यू कैन सिट विद मी फॉर 2 hours, नो इशू। सेम टाइम यू कैन गेट एंड सी द लेक्चर्स इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कोई समझ में आ रहा, यू पीपल कैन आस्क मी क्वेश्चन एनी टाइम। दीज आर लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस। अभी हम वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। वी विल एक्सप्लेन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। So we'll invite all students. Your friends can also join those sessions. And we will see that we will be free only for all the students. We will solve questions, etc. तो अब क्या आ रहे हैं, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पावर मैं आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पावर। देखो, all appliances have electric power. Yes or no? पावर कितनी है? Yes sir. हर चीज की पावर है। वी आर सेइंग पावर है भाई। तो पावर क्या होती है? आप कह रहे हैं जब बल्ब आप खरीदते हो मार्केट से, क्या करते हो? आप कहते हो गिव मी 60 वाट, 100 वाट। तो 100 वाट क्या है? व्हाट इज द वाट विच इज रिटर्न? एवरी अप्लायंस इज हैविंग ए वैल्यू। देखा आपने, हीटर के ऊपर भी लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, एवरी अप्लायंस, यू नो, यू चेक इट बिफोर यू बाई, यू विल सी दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ द पावर, पी। तो ये पावर क्या है? व्हाट वी डिफाइन पावर? यू सेड कि सर पावर तो आपने डिफाइन की थी रेट ऑफ डूइंग वर्क, फिजिक्स में। बोलो, किया था? Yes sir. तो यहां पर वर्क कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो वर्क एंड एनर्जी, यू आर सेइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो आप कह रहे हैं 60 वाट का बल्ब है, मतलब ये 60 जूल्स ले जाता है 1 सेकंड में। Yes That is sir. what you are saying. अगर आपने, if you have put a 60 watt bulb, what it means? What आप, it will consume how much electrical energy? 60 60 joule in watts. 1 second.
और अगर 100 का लिया तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो आपके बिल भी तो बढ़ जाएंगे। तो हम अब जो लाइट्स आ रही हैं, व्हाट आर दोस, व्हाट दे हैव सेड कि इनका क्या 0 वाट के आप कह रहे हो, बहुत बहुत लो वाट के बल्ब चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप कह रहे हो भाई सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर मैं ये कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी सर्किट है, सर्किट कैसे चलता है, आपने देखा कि विदाउट बैटरी तो कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, तो फिर देयर विल बी नो करंट। तो आपको जो हमारे वायर्स आ रही हैं घर में, वहां पे क्या हो रहा है, दे आर मेंटेनिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको वो अपनी एनर्जी से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हैं आपके घर में। आप व्हाटएवर सर्किट यू आर हैविंग एट होम, इन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो इफ इलेक्ट्रॉन मोशन विल नॉट टेक प्लेस, करंट विल नॉट फ्लो। इलेक्ट्रॉन कंज्यूम थोड़ी हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं सिर्फ। कौन मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिटी में यूज कर रहा हूं उससे मैं मूव कर रहा हूं। क्या मूव कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे घर में घूम रहे हैं। समझ आई? सो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स आर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंज्यूम नहीं हो रहे when electricity is passing in my home. So what we are paying to electricity board or electric company to provide energy, to move the electrons through our electric gadgets, whatever you are. जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपके घर में हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है। आपने स्विच ऑन किया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से जो आ रही है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। तो पर यूनिट टाइम की मैंने बात की, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर, वाट। तो यू आर सेइंग, जैसे ये पावर है, ठीक है, तो ये जूल पर सेकेंड, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वॉट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड जो यूज हुई है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड इट कैन बी सप्लाइड बाय सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिक बैटरी भी जो है वो आपको सप्लाई करती है। जितनी भी बैटरी आपने इन्वर्टर लगा रखे हैं आपने, जब बिजली चले जाती है तो वो क्या कर रहे हैं, तो आपको सप्लाई कर देते हैं। वो क्या आपको सप्लाई कर देते हैं, पावर। तो कितना पावर का आपने लिया, अकॉर्डिंग टू दैट कितने अप्लायंस आपके चल जाते हैं, राइट? समझ में आ रहा? तो यहाँ पर फॉर एनी सर्किट द पावर इज, पावर का फार्मूला क्या हमने बताया था, पावर इज इक्वल टू, पावर मैंने क्या बताया था, V इंटू आई। ठीक है, बोलो ये फार्मूला सही है गलत है, जल्दी बताओ, ये याद करने हैं मुझे सारे फार्मूले। Yes, sir. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई तुमने कहा, तो V का फार्मूला क्या होता है, V ओम्स लॉ तो याद है, बताइए व्हाट इज V। V is equal to I into R. हाँ याद हो गया, अब भूलेंगे नहीं। तो बार बार ये कह रहा हूँ, ये तो बेसिक है, इससे तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो V की वैल्यू रख दो, क्या बन गया फिर, V is I equal to स्क्वायर। I square into R. ठीक है, तो ये पावर है, एनर्जी करनी है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये एनर्जी है, एनर्जी है तो पावर इनटू टाइम, दैट विल बी माय एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So far any circuit power is equal to voltage difference across the elements multiplied by the current. Apply the Ohm's law. So there is an additional form of electric formula. Power is measured in the form of watts. इसने यही क्वेश्चन पूछ लिया था, what are the SI units of power, where 1 watt is equal to, when I say, उन्होंने पूछा what is 1 watt, क्वेश्चन था what is 1 watt, simple question. So when 1 joule of electrical energy is used for 1 second, or 1 joule of electrical energy is in a circuit for 1 second, what will be that, 1 watt. 1 joule or 1 second. तो जूल क्या होता है, एनर्जी है। विच एनर्जी आई एम यूजिंग हियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और टाइम है ये, कितने टाइम के लिए, तो उसी को 1 वाट कहते हैं। तो नोट कर लिया हमने, समझ में आया पावर क्या होती है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको लेके हमने ये सारे, making all this makes me 2 to 3 hours, whatever lesson I make on this, you see, for teaching you will make me minimum 2 to 3 hours for one lecture. It requires a lot of hard work. I go beyond the books and collect material and questions which are asked in the papers to the students, because I want to explain to you by you understand everything. तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वाट। ठीक है, so many times question asked. It is a power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. In other words, what formula I told you, power is equal to V into I. तो अगर 1 volt power है, ठीक है, power consumed by a device, when
पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर, इज इट राइट? Yes, sir. तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट है तो वो क्या बन जाएगी? 1 वाट, राइट? Yes. और भी हमने आसान कर दिया आपका 1 वाट. समटाइम्स सर्टेन क्वेश्चंस आर गिवन इन द रिलेशनशिप्स. तो 1 वाट इज इक्वल टू, ये भी फार्मूला नोट कर लिया आपने. ऑल दीज फार्मूलाज, colored pens you have, notebooks you have, and mark them out, because any formula can be used in the numerical anytime. Okay, now coming to the most important question, very important question, student. What is the commercial unit of electrical energy? What is the need of commercial unit? What do you mean by commercial? Commercial का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए. Sir, that the symbol are used in everyday life. मतलब कितना पैसा आपका बिल आपका आना है, अब ये बात होगी. इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू आर कंज्यूमिंग. तो एक दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल तो आता नहीं, मंथ का ही आता है ना. Yes, sir. तो यू आर, हर समय आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं. सो मेनी अप्लायंसेस आर वर्किंग, डिफरेंट अप्लायंसेस आर ड्राइंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कोई ज्यादा कंज्यूम करता है, कोई कम यूज करता है. ठीक है, तो फिर आपका जो कमर्शियल का मतलब है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट सम इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी गिवन टू यू. तो आपके आउटसाइड एक मीटर लगा हुआ है, बोलो लगा हुआ है, Yes, sir. वो चल रहा है. Yes, sir. तो वहां पे कोई रीडिंग आ रही है, Yes, sir. तो वो यूनिट्स हैं, उसे हम बोलते हैं कितने यूनिट. आपके बिल में भी लिखा होता है ना, सो मेनी यूनिट्स कंज्यूम, और डेट लिखी होती है फॉर 1 मंथ, जो भी है. तो यूनिट्स लिखे होते हैं भाई. एक यूनिट जो है, मैं कह रहा हूं 1 किलोवाट आवर है सपोजिंग. अब मैं कह रहा हूं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलो वाट आवर. क्या बोल रहा हूं? किलो वाट आवर. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलो किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ. 1 मतलब 1000 grams. अरे वाट है ना यहाँ पर, किलो वाट कह रहा हूँ. 1 किलो वाट कितना हो गया? 1000 वाट्स. ठीक है, Yes, sir. और 1 आवर कितना हो गया? 60 इंटू 60 सेकेंड्स. ठीक है, 3600. तो वाट क्या होता है? व्हाट इज वाट? वाट किसका यूनिट अभी तो बताया था, जूल Electric power. पर सेकंड. ठीक है, मैंने सही लिखा, गलती करूं तो मुझे Yes, बता sir. देना, मेरे से भी गलती हो सकती है. सेकंड और सेकंड कट गए, कितना आंसर आया ये जल्दी बताओ. 36 into the power 36 6. इंटू 10 to 1 power 2 6. 3 4 5 10 पावर 5 आया ना. तो हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं ये नंबर 1 to 10 से, बिटवीन 1 and 10 करते हैं हम हमेशा. कितने करते हैं? 1 to 10, साइंस में, फिजिक्स में, हर चीज. तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 आ गया जूल्स. तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर. तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हुआ? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स. मतलब 1 आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी यूज हो रही है? 3.6 इंटू 10 पावर 6. किलो जूल्स में लिखना है तो 3.6 इंटू 10 पावर 3 हो गया. ठीक है, ऐसे भी मैं लिखता हूं, तो ये किलो जूल्स हो गया. सही है ये? बोलो, कोई गलती तो नहीं की मैंने? सर, एक के जूस में कितने होते हैं वैसे? अरे एक केक, किलो, किलो क्या होता है जल्दी बताओ. ओके सर, ओके, समझ गया सर. अब मैं समझ लो, हर चीज को याद नहीं करना. किलो, अरे एक के जब मैं लिखता हूं तो वो 10 पावर 3000 ही होता है. कहीं भी यूज कर लो. किलोमीटर 1000 मीटर हो गया, किलोग्राम 1000 ग्राम हो गया. जब भी मैं के यूज कर लूंगा तो समझ लेना. समझ गए? अभी ये सारा तुम नेक्स्ट क्लास में और भी पढ़ोगे. Yes. तो किलो है, मिली क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं. वी शुड लर्न इट. मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा सारा आपको. तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैंने इसको मार्क कर दिया, ब्लॉक में डाल दिया. जब मैं किसी चीज को ब्लॉक में डालता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको दिमाग लगा लो. आगे चल रहा हूँ. ठीक है, Yes, sir. let me see what type of questions are being asked on this in the paper, student. तो टॉप क्वेश्चन 1 आ गया मेरे पास. न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही कर रहा हूं मैं सारे. यू हैव सीन इन इलेक्ट्रिसिटी आई एम मेनली डूइंग न्यूमेरिकल्स. तो प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है ऑल दिस.
और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। जनरेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके घरों के बाहर भी जनरेटर लगे हुए आजकल, जब इलेक्ट्रिसिटी वहां से आ रही है, पार्क में कहीं लगा होगा जनरेटर, चेक कर लेना। तो ये 220 Yes, sir. वोल्ट का जनरेटर है, करंट इज 0.5, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। इजी क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे 1 मिनट, आंसर बताइए। Sir, done. व्हाट इज द आंसर? Sir, 110 watt. ठीक है, मैंने कहा कि एग्जाम में मैं हर आई राइट ऑल द स्टेप्स, पहले जो गिवन होता है उसी को लिखता हूँ। आई इज इक्वल टू, फिर मैं यूनिट चेक करता हूँ भाई, यूनिट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो ये एम्पेयर दिया, अगर मिली एम्पेयर दे दिया मान लो किसी क्वेश्चन में, ऐसा आ चुका है, इंस्टेड ऑफ एम्पेयर दे गया मिली एम्पेयर, स्टूडेंट उसी को यूज कर रहे थे, फिर सारा आंसर गलत हो गया। तो यूनिट्स भी चेक कर लिया करो, क्योंकि यूनिट्स के मार्क्स होते हैं भाई, ऐसा ही यूनिट्स यूज कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड इट। तो फिर फार्मूला लिखो, फार्मूला क्या है? V into I. आधा नंबर मिल गया फार्मूले का, और फिर सॉल्व करो। अब कितना आया? 110 joules per second to 110 watts. तो 110 जूल पर सेकेंड और 110 वॉट्स, हाफ नंबर यहाँ मिला। तो फिर मेरा आंसर 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, मान लो इसमें ज्यादा मुश्किल तो था ही नहीं, तो ऐसे नंबर मिले। और मैंने स्टेप्स नहीं लिखे तो फिर मेरा नंबर कट गया, समझ गए? जो स्टेप्स होते Yes. हैं, राइट ऑल द स्टेप्स, बार बार लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। आंसर गलत भी हो जाता है ना कई बार, तो फिर भी नंबर मिल जाता है, अगर स्टेप्स नहीं लिखे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग स्टूडेंट्स। अब इसको रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन, एंड यू आर गेटिंग 2 minutes टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 2। चलो अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हो घरों में, बोलो करते हो? Yes, sir. अब आइडिया हो गया कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कितनी पावर पे चल रहा है, कितनी पावर है उसकी, पावर 400 watt. कितनी है इसकी? 400 वॉट्स का मतलब 400 जूल्स पर सेकेंड ये एनर्जी ले लेगा, ठीक है। और कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है? 8 hours a day. एक डे में, 1 डे में, ठीक है। what is the cost of energy if it operate for 30 days at the rate of 3 per kilowatt hour? तो मतलब जो एक यूनिट मैंने बताया वो 1 किलोवाट आवर के बराबर है, जो मीटर रीडिंग आ रही है, तो 3 रुपीज एक यूनिट के हैं। तो पहले किलोवाट आवर निकालूंगा तभी इसका आंसर आएगा। अब आपके पास 2 मिनट का वक्त है, निकालो कितने किलोवाट आवर बनेंगे। हमें क्या निकालना है? किलो Sir, ये हो गया. वाट आवर। किलोवाट आवर कैसे निकालेंगे? हमें वाट दिया हुआ है, Yes, sir. तो वाट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये किलोवाट आ गया। Yes, sir. Sir, फिर into 8 और into 30. अब एक डे का अगर मैं कर रहा हूं तो 8 आवर्स यूज हुआ, और कितने डेज हैं? 30 डेज। सारे स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, कोई स्टेप नहीं मिस कर रहा। 30 इंटू 40,000, ठीक है। 30 डेज का हो गया, 40 इंटू 8 किलोवाट आवर्स, ठीक है। 30 डेज किलोवाट आवर्स कितने कंज्यूम हो गए? फिर काटो, 2 तो यही गए, ठीक है। कितना आया फिर? Sir, 96 आ रहा है. ये 96 आ रहा है। हाँ सर, 96 किलोवाट आवर. मैंने कोई गलती की है? 400,000 ये कट जाएगा, 5 सर कहाँ से वो कट? 400 आएगा ना, आपने यहाँ पे 40 लिखा है. अच्छा 400 है ना, ओके ओके, ठीक है। 400 है ना, एक जीरो कटो, ठीक है। यहाँ भी मैं सोच रहा कुछ मिस्टेक, देखो अगर हम मिस्टेक करते हैं हमें खुद पता लग जाता है, ठीक है। तो लो इसको ठीक कर लो, कोई बात नहीं, वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है। यस सर.
हो So गया 96. चलो 96 किलोवाट आवर, मतलब 96 यूनिट्स यूज हुई हैं आपकी, ठीक है, इन 30 डेज। तो कॉस्ट कितनी है फिर? कॉस्ट फॉर 30 डेज, कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 30 डेज, तो 3 पर है तो कितना आया फिर? So 96 into 3. ठीक है, कितने आ गए फिर? So बिल two कितना double बिल eight. आएगा आपका? 288. कितने रुपए आ गए? 18, 288 रुपीज का बिल आया। Yes, sir. तो फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हो, आपको पता लग गया कैसे कैलकुलेशन हो रही है। आप अपनी मीटर रीडिंग नोट करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये असाइनमेंट होती है कि गो टू योर होम, चेक द मीटर रीडिंग। आज आपने नोट कर ली, फिर 1 मंथ बाद नोट करना और फिर उसका बिल निकालना, और यूनिट पता होनी चाहिए, व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट, किलोवाट आवर के हिसाब से ही होती है। अनदर टॉप क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। देखो क्वेश्चन आंसर ही हमारा सारा चल रहा है। क्वेश्चन क्या है ये? व्हाट डिटरमिन्स द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। व्हाट, बताओ भाई, कौन सा जो एनर्जी डिलीवर्ड कैसे होती है? व्हाट डिटरमिन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। फिर क्या आंसर करोगे? आपके पास 1 मिनट का समय है। सोचना है बस, कोई भी आंसर ऐसे नहीं करना। रेट एट विच एनर्जी का मतलब क्या हुआ भाई? व्हाट डू यू मीन बाय रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड? रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड वो क्या होती है? पावर ही होती है। Yes, sir. तो मतलब पावर का फॉर्मूला क्या था आपके पास? V into I. V इंटू आई। अब यहां पर V क्या होता है? Volts. ये ओम्स लॉ है। Yes, sir. चलो ठीक है, हमें दोनों को आता है। तो हमारे पास क्या आया? आई I स्क्वायर square into R. पावर, जो मतलब जो रेट ऑफ एनर्जी है, रेट ऑफ एनर्जी क्या है? रेट ऑफ एनर्जी जो है वो आई स्क्वायर आर आई है। Yes, sir. अब वो कह रहा है इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। मान लो करंट तो उसने दे दिया हमें, आई करंट उसने आई दे दिया हमें। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगी ये? क्या Sir, बचा R फिर? के ऊपर. अब बचा क्या? ये आई तो उसने आई तो फिक्स कर दिया, तो आर ही तो बचा फिर। व्हाट डिटरमिन्स द रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड, व्हाट इज अवर आंसर? क्या लिखोगे फिर? रेजिस्टेंस आर, ठीक है, Yes, sir. इन द सर्किट। तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वही डिटरमिन करेगा। बोलो सही लिखा मैंने? Yes, sir. देखो जल्दी नहीं, मैं कह रहा हूँ आई हैव टू फाइंड द आंसर ना, मुझे सोचना पड़ेगा। आपको भी यही मैं सिखा रहा हूँ कि सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। चलो आंसर नंबर 2 पर आ गए। कोई भी क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, बट वी हैव टू थिंक एंड वर्क आउट स्लोली एंड स्लोली, वी विल बी एबल टू डू इट। First, you write down the given information. Electric motor takes 5 amperes. What is given current? आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। आपने यू हैव यूज्ड इलेक्ट्रिक मोटर इन योर समटाइम्स इन योर लाइफ। हर चीज में ही है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। करंट कितना है? 5 एम्पेयर। कितना दिया? 220 वोल्ट। Volts. Yes. डिटरमिन द पावर ऑफ द मोटर। Sir, 1100 watts. तो पावर का फॉर्मूला बताओ फटाफट मेरे को। V into I. चलो याद हो गया, रखो वैल्यूज। 220 वोल्ट इंटू 5 एम्पेयर कितना आया? 1100 watts.
तो इसको जूल पर सेकेंड लिख दो या 1100 वॉट्स लिख दो, सेम थिंग। चलो, जो वोल्ट और एम्पियर को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसा यूनिट वॉट है पावर का, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? Sir, power of the motor that and the energy consumed in 2 एनर्जी, hours. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी? टेल मी, एनर्जी का फार्मूला पहले बताओ, लिखना पड़ेगा ना पेपर में फार्मूला। व्हाट इज एनर्जी? मुश्किल क्या है, तुमने बार बार तुम्हें बता दिया, ये एनर्जी बाय टाइम है, W/T है, सेम ही तो है ये एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी देन? पावर इनटू टाइम, बोलो। Yes, sir. तो फिर पावर कितना है? 1100 जूल पर 100. सेकेंड, और टाइम कितना है? Sir, 200 तो ये 7200 हो जाएगा. 2 आवर्स। 36 तो ऐसा यूनिट में करोगे कितना आएगा? 2 इंटू 60 सेकेंड्स। चलो रखो यहाँ वैल्यू, फिर ये कितना आया? 36 इंटू 2, Sir, 7200 7200 into 1100. सेकेंड्स। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल करके दिखाओगे पेपर में, कितना बचा, फिर कितना आंसर आया? आंसर बताओ कितना आ रहा है। देखो, और सिंप्लीफाई करते होते हैं हम एग्जाम में, इसको करा। अब 10 की पावर्स को हाउ मेनी आर 4, ठीक है, ये जूल्स में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो और रखो आंसर, फिर उसको 1 और 10 के बीच में करके 10 की पावर्स कर देना सारी। आपके पास Sir, एक 792. अच्छा 792 आया, ये 11 टू द 22, 11 792 इंटू 10 पावर 4 आया। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7.92 इंटू 10 पावर 6 जूल्स, ठीक है। Yes. और इसका सिंप्लीफाई करने का मैंने एक मेथड बताया था, क्या बताया था? तो एनर्जी कितनी आई है? 7.92 इंटू 10 पावर 3 किलो जूल्स लिख दिया, वो भी एक, ठीक है। एनी डाउट हियर? No, sir. This ends up the topic of electricity completely as per the NCERT syllabus, and therefore we will meet you next time for the day after tomorrow for the reproduction, ठीक है। And meanwhile you have assignments and homework, solve all the questions of the NCERT book on electricity. At some other time I will discuss all the questions of NCERT also with you. You are given 1 day to solve the NCERT electricity questions. Okay. Bye, sir. Okay, bye then. We'll see you next time.